Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing rotational kinematics, and today is the turn to discuss your doubts. I told you to solve all the basic level questions, right? And आपको मुझे doubts पूछने हैं, and कुछ advanced level के questions भी मैं आपको करूँगा. So let's starting from the very first topic based on the center of mass. Anybody wants to ask the questions from the basic level of the from 1 to 12 question. चलो 1 to 17 में किसी को कुछ पूछना है? Am I audible to you, friends? Yes, sir. Okay, 1 to 17 के अंदर किसी को कुछ पूछना है? 15. Question of 15, okay. So what is the question exactly? A flywheel gains a speed of 540 rpm in 6 seconds. What is the angular acceleration? देखो gains है, इसका मतलब क्या? What should be the initial angular speed? It should be 0. And final जो है ना वो 540 rpm है. rpm का मतलब क्या हुआ? Revolution per minute. But answer is in the terms of radian per second. So this unit will not be going to apply. So 1 revolution is equals to, as you know, 2 pi radian, and 1 minute is, as you know, it is a 60 seconds. So we have to convert this velocity, angular velocity, into the form of radian per second in place of revolution per minute. So 0 get cancelled, 9 6 are 54. So 9 will be remain, 9 2 are 18, 18 pi will be there. 18 pi radian per second will be there. And we also provided the time interval. Now चलो, which formula should be applicable? अल्फा फाइंड करना है, टाइम भी दिया हुआ है आपको, ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, अल्फा फाइंड करना है. बोलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बताओ. एनीबडी? नोबडी? कोई नहीं? Omega square minus omega देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस Omega ओमेगा, is Omega is equal equal to to omega naught plus alpha t. yes. ओमेगा स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है ना उसमें तो टाइम है ही नहीं. And displacement, angular displacement, we don't provide, we have not provided the angular displacement. Theta is not given. So we must apply the formula omega equals to omega naught plus alpha t. To make alpha subject equation, it is a omega minus omega naught by t. ओमेगा जो है ना वो 18 पाई है, ओमेगा 0 है, अपॉन टाइम इंटरवल आपका 6 सेकंड है, तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट ओके? इज इट अंडरस्टूड? चलो और 1 to 17. एनीबडी? चलो अप टू 28. ये एडवांस लेवल का तो मैंने करा दिया था. ओके फाइन. चलो अप टू 34. अप टू 34 एनीबडी वांट्स टू आस्क? 33, 34. ओके 33 34. देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है ना जेडबल नीट का, तो यू मस्ट सॉल्व. बोलो. Sir, 28. Sir. ओके वो बाद में, लेट मी कंप्लीट द 33 फर्स्ट एंड आफ्टर वी डिस्कस द 28. ओके, अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है नीट जेडबल का,
तो आपको डेफिनेटली एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। तो करना क्या है, बायोलॉजी वालों को मेरा जो नोट्स है वो आपको सॉल्व करना है, और अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर नीट पेपर्स, इतना करना है। जेडब्ल्यू वालों को, मैथ्स वालों को मेरा नोट्स प्लस जेडब्ल्यू के पास्ट पेपर्स करने हैं। बस इतना करोगे तो आराम से आप क्रैक कर पाओगे, उसमें कुछ नई बात थी। देखो क्या लिखा है 33 में, 2 men are carrying a uniform bar of a length L on their shoulder. The bar is held horizontally such that the younger man gets 1/4 of the load. Suppose the younger man is at the end of the bar. Then what is the distance of the other man from the end? Okay. तो एक यहाँ पे एक बार दिया हुआ है, कोई हैवियर बार होगा, तो ये मान लेते हैं कि एक बार है, राइट। अब क्या है, उसका लेंथ एल है एंड द शोल्डर, द बार इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली सच दैट द यंगर मैन, यहाँ पे यंगर मैन है, मान लो कि यहाँ पे यंगर मैन, ये वाला जो है ना वो इसके शोल्डर पे है वैसे, तो ये यंगर मैन है। ओके, एंड इट इज गेटिंग द 1/4 ऑफ द लोड। ओके, सपोज द यंगर मैन इज एट द एंड ऑफ द बार, देन व्हाट शुड बी द डिस्टेंस। मान लो कि दूसरा जो बंदा है ना वो यहाँ पे कहीं पे है, उसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है। ओके, and what is the distance of the other man from that end? Okay, okay, अब यहाँ पे ऐसा है कि ये जो यंगर मैन है ना उसके द्वारा कितना रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, सो बोले लोड का 4th पार्ट वो कैरी करेगा, मतलब उसके द्वारा जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगा वो W/4 है, और इसके द्वारा कितना होना चाहिए तो फिर भैया, इसके द्वारा कितना रिएक्शन प्रोड्यूस होना चाहिए तो फिर 3W/4. वेरी गुड, 3W/4। और ये जो इसका जो वेट लगेगा ये जो बार का, वो कहाँ पे लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो बार का खुद का जो वेट है ना वो लगेगा उसके सेंटर ऑफ, बार के खुद के सेंटर ऑफ मास पे। तो ये आपका हो जाएगा, ये बार का खुद का जो वेट है वो, मतलब ये जो रोड है ना दैट इज कैरिंग, द रोड इज एक्सपीरियंसेस 3 काइंड ऑफ फोर्सेस, रिएक्शन बाय द यंगर मैन, reaction by the elder man, and its own weight. Is that clear, friends? Yes or no? Yes, sir. As the road is a stationary, ये जो रोड है ना वो स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो क्या होगा, हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 इज कम्स आउट टू 0। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई एम कंसीडर, देखो आपको याद होगा कि हम कोई भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। हमने 7 चैप्टर जब डिस्कस किया था तो एक आध दो न्यूमेरिकल में मैंने आपको अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के द्वारा सॉल्व किया था, तो भी आंसर सेम ही आ रहा था। तो दैट एट दैट टाइम वी हैड कंक्लूड दैट वी कैन कंसीडर द रेफरेंस पॉइंट एनी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज वी वांट, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हम ये जो पॉइंट है ना उसको रेफरेंस पॉइंट कंसीडर, इसको ही रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर देंगे। तो τ1 इज इक्वल्स टू W/4 इंटू 0, बिकॉज W/4 का रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो बोले 0 है, वो रेफरेंस पॉइंट पे ही है। फिर बचेगा W इंटू क्या लिखना चाहिए मुझे, ये रेफरेंस पॉइंट से ये W का डिस्टेंस कितना होगा, तो एग्जैक्टली L/2. बट इट शुड बी टेकन पॉजिटिव, ये टॉर्क पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट को पकड़ लो, आप उसको पकड़ लो और इसको W जितना फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करो, तो रोड का जो टेंडेंसी रहेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise. हाँ, तो क्लॉकवाइज उसका टॉर्क कैसा होता है,
याद करो फ्रेंड्स, नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जो टॉर्क होता है ना वो नेगेटिव लेना होता है, एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आपको पता होगा कि टॉर्क जो है ना वो पॉजिटिव लेना होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब तीसरा और एक फोर्स है, ये रिएक्शन वाला 3W/4। तो तीसरा जो टॉर्क है वो 3W/4, उसका डिस्टेंस ही तो मुझे फाइंड करना है रेफरेंस पॉइंट से, तो उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर एक्स है। बट ये वाला जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में रोड को मतलब रोटेशन कराने का टेंडेंसी होगा उसका, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये 3W/4 वाला जो फोर्स है वो क्या करने की ट्राई करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। रिजल्टेंट टर्म इज 0। चलो इतना समझ में आया भैया? ये तो यस सर। सही है। और ये नेगेटिव को राइट साइड ले जाते हैं, नेगेटिव को अगर राइट साइड ले जाते हैं तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? W get cancelled from both the sides and our target is to find the x। तो x को सब जगह इक्वेशन बना दो, तो हो जाएगा 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2L/3 इज द आंसर। 4 ऊपर 3 नीचे, 2 2 4, 2 ऊपर रहेगा, तो 2L/3 शुड बी द आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। आया बात समझ में? यस सर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो 28 भी करना है ना? 25 भी। 25 भी करना है, ओके। देखो, आप जितने MCQ सॉल्व करोगे ना उतना आपको अच्छा रहेगा। I had provided a notes here, so उसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, सब कुछ सॉल्व करना चाहिए। 25 में क्या लिखा है? हमको एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, सो ओमेगा का इक्वेशन दिया हुआ है a minus bt, and what is the total angle subtended by the before the coming to the rest। अच्छा, coming to the rest का मतलब क्या हुआ? When object come to rest, at that time what happened? At that time उसका, when the object come to the rest, at that time its angular velocity becomes 0। उसका जो angular velocity होता है ना वो 0 होता है, मतलब a minus bt becomes 0, मतलब जो टाइम होगा ना वो हो जाएगा आपका a/b। चलो फर्स्ट थिंग इज दैट, मुझे क्या करना है, मुझे भैया भैया मुझे एंगल फाइंड, मतलब एंगल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। Now as you know omega is equals to, can I say d theta by dt? It is compatible with the v equals to dx upon dt। It is compatible with this equation। Is it okay friends? Is it okay? हाँ कि ना तो बोल दो फटाफट। यस सर। Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो d theta is equals to, can I say omega dt? Yes, sir. यस। So अब कोई बताएगा मुझे अब मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। एग्जैक्टली कौन बोला? कौन बोला? हेत प्रजापति। गुड। इंटीग्रेशन 1 थीटा, मतलब मान लो कि इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर पोजीशन थीटा नॉट है, फाइनल थीटा है, और इनिशियल टाइम 0, बट मुझे बताओ फाइनल टाइम में क्या लूंगा? a/b। वेरी गुड, बिकॉज आई वांट्स टू फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी स्टॉप्स, एंड जब बॉडी स्टॉप होता है, बॉडी कम टू द रेस्ट आता है, तो ये टाइम होता है a/b जितना। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो, इंटीग्रेशन 1 d थीटा कुछ है ही नहीं, मतलब उसका थीटा होगा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। ओमेगा का वैल्यू जो है ना वो अब हम प्लेस करेंगे, उसका वैल्यू दिया हुआ है a minus bt, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो थीटा माइनस थीटा नॉट मतलब डेल्टा थीटा, दैट एक्जैक्टली द थिंग वी वांट्स टू फाइंड। थीटा माइनस थीटा नॉट वही तो फाइंड करना है। चलो, इंटीग्रेशन a का क्या होता है? a इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? dt। into t, very good, so a into t,
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन a इंटू टी होता है, माइनस बी टी रेज टू 1 है, उसका क्या होगा? t²/2. अब तो मास्टर हो गया ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। चलो ये समझ में आया भैया? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो टाइम के बदले लिखेंगे हम a बाई बी, b/2, टी स्क्वायर के बदले लिखेंगे a²/b²। ये अपर लिमिट मैंने अप्लाई किया, लोअर लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ जीरो। तो t के बदले 0 0 लिखो तो वो 0 ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. तो अब ये बचेगा आपका a²/b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो a²/2b बचेगा। तो a²/b कॉमन, 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ मतलब हाफ ही रहेगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू a²/b और a²/2b। सो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर ऑफ टाइम। a²/2b है कोई ऑप्शन? ये रहा आपका ऑप्शन बी। आया बात समझ में फ्रेंड्स? Yes. इज इट अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. और 28 बोला कोई? 28 पूछना है? 28 डाउट है किसी का? चलो बिफोर, चलो अप टू 37, एनीबॉडी अप टू 34, किसी को कुछ पूछना है? अप टू 34 लास्ट कॉल। 34. ओके 34। देखो क्या लिखा है, यूनिफॉर्म वाटर स्केल बैलेंस एट द 40 सेंटीमीटर मार्क। अच्छा, यूनिफॉर्म मीटर स्केल balances at 40 centimeter mark when weight is a 10 gram and 20 gram are suspended from the 10 centimeter and 20 centimeter mark. The weight of the meter scale is, चलो हमारे पास एक मीटर का, मीटर मतलब 1 मीटर का स्केल है हमारे पास और वो बैलेंस हुआ है। देखो 1 मिनट, बताता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये हमारा मीटर, देखो एक तो मेन चीज ये है कि आपको फिगर समझ में आना चाहिए। ये मीटर स्केल है, uniform meter scale balances at 40 centimeter mark when the weight 10 gram and 20 gram are suspended from the 10 centimeter and 20 centimeter mark. तो मान लो कि यहाँ पे कहीं पे 0 मार्क है, तो ये आपका 0 मार्क, यहाँ पे कहीं पे 20 होगा, यहाँ पे कहीं पे 40 होगा, यहाँ पे कहीं पे 60 होगा, यहाँ पे कहीं पे 80 होगा और ये हो गया आपका 100। तो ये जो आपका जो मीटर स्केल है ना, वो क्या है? तो मीटर स्केल है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर का उसका लेंथ होगा। ओके, अब दिया गया ये है कि 40 सेंटीमीटर पे 10 ग्राम प्लेस किया हुआ है, नहीं, balances at 40 centimeter mark when the weight of 10 gram and 20 gram are suspended from 10 centimeter and 20 centimeter। तो 10 सेंटीमीटर पे 10 ग्राम पड़ा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है 20 ग्राम। तो ये 10 ग्राम, यहाँ पे 20 ग्राम, ये 10 सेंटीमीटर का मार्क, और यहाँ पे बैलेंस हो रहा है 40 पे। द वेट ऑफ द मीटर स्केल। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैंने कोई सपोर्ट रखा हुआ है और इसके रिस्पेक्ट में वो बैलेंस हो गया। और फ्रेंड्स ये जो मीटर स्केल है उसका खुद का वेट कहाँ पे हम लगाएंगे? उसका खुद का वेट हम कहाँ पे लगाएंगे? Center. उसके Center of सेंटर। 40 gram. 40 centimeter. अरे सेंटर 40 पे आएगा क्या भैया? 100 का सेंटर 50. 50 आता है, राइट?
तो दिस मीटर स्केल इज एक्सपीरियंसेस 3 काइंड ऑफ फोर्सेस. कोई मुझे बताएगा कौन से 3 फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं? एक तो खुद का वेट जो होगा वो होगा, दूसरा लगेगा 10 सेंटीमीटर पे एक कॉइन पड़ा हुआ है, मतलब वेट पड़ा हुआ है, वो लगेगा, एक ये लगेगा और एक तीसरा ये लगेगा. ये जो फोर्स है वो आपका 10 जी जितना होगा माजी, ये 20 जी होगा और ये डब्लू, मतलब उसका वेट मुझे फाइंड करना है, वो डब्लू मैंने मान लिया. और ये मेरा हो गया रेफरेंस पॉइंट, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करता हूं, राइट. अब बैलेंस इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा? बोलो. 0. जीरो. Zero. तो रिजल्टेंट टॉर्क जीरो, मतलब टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 इज इक्वल टू जीरो. तो सबसे पहले ये 10 जी का बारे में सोचो. तो फोर्स है 10 जी, 10 इंटू 9.8 इंटू परपेंडिकुलर फोर्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू टॉर्क. बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेना है आपको? रेफरेंस पॉइंट से लेना है. तो रेफरेंस पॉइंट से ये 10 वाला जो 10 ग्राम का डिस्टेंस है वो कितना होगा? 10 centimeter. कहाँ से यार 10 सेंटीमीटर? आपके 40. पॉइंट से. 40 सेंटीमीटर. यार आप लोग यार ये 30 centimeter. 30 है क्या यार? आप लोग एक सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हो, क्या बात है? तो यहाँ से आपके रेफरेंस पॉइंट से, ये रहा आपका रेफरेंस पॉइंट जो 40 पे है, तो वहां से ये डिस्टेंस कितना होगा? तो 30, 10 से 40 मतलब 30 ही होगा ना? यस और नो? अरे हाँ के ना तो बोल दो. Yes. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि ये 10 ग्राम वाला जो फोर्स, 10 जी वाला जो फोर्स लग रहा है, वो क्या करने का ट्राई करेगा? रोड को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. आपको रेफरेंस Negative. पॉइंट को पकड़ना है, आपको रेफरेंस पॉइंट को पकड़ लेना है और फिर सोचना है. तो ये क्लॉकवाइज कराएगा या एंटी क्लॉकवाइज कराएगा? 10 ग्राम के तरफ आप एक फोर्स अप्लाई करो, तो रोड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज जाने का उसका टेंडेंसी होगा भैया. सोच लो. तो ये रोड जो है ना वो इस हिसाब से घूमने का ट्राई करेगा. तो ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो. Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. Anti-clock. इट शुड बी टेकन पॉजिटिव. चलो अब दूसरा 20 जी वाला लेते हैं. और 20 जी से ये फोर्स 20 जी एंड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 40 से 20 का? 20. 20. और इसके द्वारा जो रोड है उसका टेंडेंसी क्या रहेगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. Anti-clockwise. वंस अगेन एंटी क्लॉकवाइज. इट शुड कंसीडर इट इज अ पॉजिटिव. ओके. चलो अब डब्लू, फोर्स नंबर 3 डब्लू. एंड डब्लू का रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा भैया? 10. -10. 10. अब इसका टेंडेंसी क्या रहेगा? ये क्या करने का ट्राई करेगा? रेफरेंस पॉइंट से रोड को पकड़ो एंड डब्लू का फोर्स लगाओ राइट साइड से, तो रोड क्या करने का ट्राई करेगा? क्लॉकवाइज एंटी Clockwise. 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 दैट्स व्हाई इट शुड बी टेकन Negative. नेगेटिव इज इक्वल्स टू जीरो. रिजल्टेंट टॉर्क इज जीरो. चलो ये पता चला भैया. Yes, sir. तो ये आपका 300 जी प्लस 400 जी, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 700 जी एंड इज इक्वल्स टू 10 डब्लू. तो डब्लू को सब जगह इक्वेशन बनाओ तो आपका आ जाएगा 70 इंटू जी. सो दिस इज योर आंसर इंटू न्यूटन. इज दैट क्लियर? इज इट अंडरस्टूड? इन न्यूटन. Yes, sir. सो आपका आंसर आ जाएगा 70 जी है. यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. आया बात समझ में? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. Yes, Yes. sir. चलो. मैंने कहाँ तक लास्ट में कर, मतलब क्या बोला था आपको? क्या करके लाने का बोला था? कितने क्वेश्चन तक लाने का बोला था? Sir, all basic level के. ऑल बेसिक लेवल. ओके गुड. तो मैं पहले है ना आपके डाउट्स क्लियर करा देता हूँ. फिर मैंने आई थिंक 35 क्वेश्चन पे मैं अटका था और वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, राइट? 35 से हमने बाकी है सॉल्व करना, राइट? एडवांस लेवल के. तो आई विल सॉल्व. Yes, sir. एडवांस लेवल आई विल सॉल्व, बट लेट मी गिव यू डाउट ऑफ द बेसिक लेवल. चलो 40 से लेके बेसिक लेवल 40 से लेके स्टार्ट करके 60. चलो 40 से 60 बताओ डाउट. 40 से 49.
49. Okay, very good. So before 49, anybody? Before 49? Before 49, anybody? 42. 48. फिर से बोलो एक बार. Pardon? 48. 48. Before 48, anybody? Okay. So 48, 49. Okay. तो 48 ले लेते हैं पहले. हेत पार्टी वाला. हेत यस सर. सॉल्व करता है कि नहीं करता है? यस सर, कर रहा हूँ. The moment of inertia of a rod about the axis perpendicular to the length and passing through its points of equidistance from the midpoint and the end is. तो इसमें क्या है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको क्या करना है? रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. बट विद रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस? विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस passing from the middle of the midpoint and the end. मतलब ये वाली एक्सिस जो ये मिडल पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच में से पास हो रही है. तो ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. एंड मुझे ये तो पता ही है कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसके द्वारा उसके लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो मुझे पहले से ही पता है. सेंटर में से जो एक्सिस पास हो रही है उसके रिस्पेक्ट में तो मुझे पहले से ही पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है. तो अब जस्ट आपको क्या करना है? चलो बताओ तो मुझे. व्हाट वी नीड टू अप्लाई? जस्ट सिंपली बोल भी दो. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. एग्जैक्टली. और ये जो डिस्टेंस होगा वो L/4 कहां से आया? समझ में आया आपको? L/4 क्यों आया पता चला आपको? आधा से आधा, आधा से आधा, आधी का आधी, इसी का नाम अहमदाबादी. चाय होती है ना तो अहमदाबादी आधी में से आधी करते हैं. तो ये हो गया आपका IC + MD². अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. रोड का बोलो. रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ. चलो भैया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1/12 ml square. 1/12 ml square. वेरी गुड. प्लस MD के बदले क्या लिखो? L/4. तो ये आपका हो जाएगा 1/12 ml² प्लस 1/16 ml². चलो ये पता चला आपको फ्रेंड्स. तो 1/4 ml² कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1/3 प्लस 1/4. 1/4 ml² को मैंने कॉमन ले लिया तो 1/3 प्लस 1/4 एलसीएम लेते हैं. 7/12. 7 ऊपर 12 नीचे, 12 4 48. तो 7/48 ml². चलो आया बात समझ में? Yes, sir. B option. आया बात समझ में? इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. चलो और बताओ. 49. 49. ओके. Three-point masses M1, M2, M3 are located at the vertices of the equilateral triangle of the length A. The moment of inertia of the system about the axis through the altitude of the triangle passing from the M1. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं. देखो ए हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट? So this is our equilateral triangle. उसके तीनों वर्टाइसिस पे मास है. This is the M1, this is the M2 and this is the M3. And what we want to find? We want to find the moment of inertia with respect to the axis passing from its altitude and passing through the
m1 मास। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो जितने भी पार्टिकल्स है वो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन करना पड़ेगा। तो m1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, पार्टिकल के लिए फॉर्मूला ये है, पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये है एम आर स्क्वायर। तो ये देखो m1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो तो जीरो है, बिकॉज हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो वहां से ही तो पास हो रहा है। बट मुझे ये बताओ कि m2 से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो m2 से कितना होगा, बताओ। a/2 ऑब्वियसली a/2 दिख रहा है आपको, प्लस m3 से कितना है देखो तो, a/2 a/2 ही है a भैया। by 2. तो खत्म काम। तो m2 a²/4 प्लस m3 a²/4, तो ये हो जाएगा आपका m2 प्लस m3 a²/4। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा ना ऑप्शन ए। Option है. Okay. इज इट अंडरस्टूड? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो Yes, sir. ओके गुड। चलो और बताओ, अप टू 60, 51. 51 ओके। Two loops P and Q are made from a uniform wire. The radius of a P and Q are R1 and R2 respectively, and their moment of inertia are I1 and I2 respectively. If I2 upon I1 is 4, then what should be the value of R2 upon R1? Okay. देखो सीधी सी बात है, I1 जो होगा ना वो रिंग के लिए आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लूप। mr². हाँ लूप मतलब रिंग के लिए आपको पता है कि एम आर स्क्वायर। तो I1 must be m1 r1 square and I2 must be m2 r2 square। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि I2/I1 जो होगा ना वो हो जाएगा आपका m2/m1 इंटू r2² / r1², राइट? दैट मस्ट बी दिस। ओके। अब मुझे ये बताया गया है कि I2/I1 का वैल्यू 4 है, तो लेट अस पुटिंग दिस वैल्यू, तो बाकी बचेगा m2/m1 इंटू r2²/r1²। अब क्या, चलो यहां तक तो हम पहुंचे, अब क्या? तो अब ये बताया गया है कि दोनों जो लूप है ना वो दोनों जो लूप है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले वायर में से बनाया गया है। Both the loops are made from the wire having uniform cross section. They are made from the uniform wire. It is mentioned here. तो बेसिकली जो वायर होता है ना वो कैसा होता है, ये जो रेडियस है ना ये लूप का खुद का रेडियस है। ये जो रेडियस है वो लूप का, यहाँ पे जो R1 एंड R2 है ना वो लूप का रेडियस है। R1 इज द रेडियस ऑफ लूप 1, R2 is the radius of loop 2। okay। तो मुझे ये बताओ कि लेंथ ऑफ लूप 1 क्या आएगा, लेंथ ऑफ लूप 1, कैन आई से इट इज अ 2πr1, इज इट ओके? चलो ये पता चला आपको।
Yes, sir. चलो यहाँ तक समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मास इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। कैन आई से वॉल्यूम ऑफ वायर जो होता है वो बेसिकली सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो वायर का जो वॉल्यूम होता है ना वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर एच, एच के बदले यहाँ पे लिखेंगे एल इनटू डेंसिटी रो। अब वायर जो है ना, चाहे वायर पी ले लो या वायर क्यू ले लो, उसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन वो तो सेम ही है। तो वॉल्यूम के बदले ए एल भी लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इंटू द डेंसिटी। ऐसा हमने 2-3 बार किया हुआ है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मास ऑफ वायर 2 अपॉन मास ऑफ वायर 1 इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ ऑफ वायर 2, डेंसिटी ऑफ वायर 2, वायर 1 ए एल 1 रो। देखो मैंने दोनों में ए एंड रो को तो सेम ही रखा, क्यों? सेम वायर से बने। हाँ, सेम वायर Same से बने हैं, wire. मतलब मटेरियल भी सेम है, मतलब डेंसिटी भी सेम है, और उसका यूनिफॉर्म वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो इसका मतलब कि m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू l2 अपॉन l1। अब l2 अपॉन l1 इज इक्वल टू कैन आई से 2 पाई r2 बाई 2 पाई r1। तो ये हो जाएगा आपका r2 बाई r1। ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? So now from equation number 1 and equation number 2, from equation 1 and equation 2, so 4 equals to m2 upon m1 के बदले अब मैं r2 upon r1 लिखूं तो चलेगा भैया? into r1 upon r2 का स्क्वायर। तो फाइनली व्हाट वी गॉट, r2 upon r1 का क्यूब हो जाएगा। तो r2 upon r1 को सब जगह इक्वेशन बनाओगे तो इट विल बी अ क्यूब रूट ऑफ द 4। आया बात समझ में? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. एक बार करो ना वेरीफाई कि ये 51 में आंसर बराबर है ना, ऑप्शन बी बराबर है ना, देखते हैं एक बार। जस्ट चेक दिस वन आउट। 51 का ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन है 51 में बी दिख रहा है। और हम क्या लेके आए? हमको क्या मिला? 51 का क्या आंसर मिला हमको? हाँ, बी ही तो मिल रहा है, फाइनली बी ही तो मिल रहा है, बराबर है, परफेक्ट है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? चलो और बताओ। अप टू 60, Yes, sir. अप टू 60, 55. 55, ओके 55. ओके। चलो, 3 particles are situated on a light and rigid road along the y-axis as shown in figure। तो रोड का खुद का तो वेट है ही नहीं, रोड का खुद का तो वेट ही नहीं है। जो भी वेट है सिस्टम में वो जो पार्टिकल्स है ना, 4 kg 2 kg 3 kg के, उसके ही है। इफ द सिस्टम इज rotating with the angular velocity 2 radian per second about the x-axis, it is rotating with respect to the x-axis। तो आपको टोटल काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो सिंपल तो है। चलो मुझे ये बताओ भैया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? Half I omega square. वेरी गुड। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो भैया ओमेगा तो आपके पास है, तो आपको फाइंड क्या करना चाहिए सबसे पहले?
Moment तो मोमेंट ऑफ of inertia. कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 3 पार्टिकल है, तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा। आपको रेफरेंस पॉइंट मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझना है। ये r1 r2 एंड r3 जो है ना, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको देखना है, दिस विल अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस विल, सो दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको समझना है। चलो m1 जो है ना वो 4 है, तो मुझे ये बताओ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से 4 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3 meter. 3 मीटर, वेरी गुड। उसके कोऑर्डिनेट्स के पता चल जाएगा ना। अब दूसरा वाला है जो वो 2 है, तो उसका डिस्टेंस कितना है? माइनस डिस्टेंस हमको देखना है। वैसे -2 लिखो या 2 लिखो, उसका स्क्वायर ही लिखना है ना। एंड 3 kg वाला जो है उसका डिस्टेंस कितना है? 4 4. तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, 16 3 जा 48। तो फ्रेंड्स करो तो क्या आ रहा है, 36 प्लस 8 44, 44 प्लस 48, तो 44 प्लस 48 44 92 kg मीटर स्क्वायर। 94 आएगा। 92 बराबर है, परफेक्ट। आते हैं. अब आपका के रोटेशनल मिल जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई का वैल्यू 92 मिला, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 92 2 जा 184। आया बात समझ में फ्रेंड्स? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? यस Yes, sir. चलो और बताओ, अप टू 60। 59. 59, ओके। द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ डिस्क ऑफ, डिस्क है, पहली बात तो डिस्क है। चलो डिस्क के अगर खुद के चलो अगर डिस्क के खुद के डायामीटर में से अगर एक्सिस पास होती, खुद के डायामीटर में से, तो क्या आंसर आता? लोग के एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क के खुद के डायामीटर में से पास हो रहा है, देन व्हाट शुड बी द आंसर? अगर ये वाला एक्सिस होता तो then the answer must be 1/4 mr square. Am I right friends? डायमेट्रिकल एक्सिस की बात है। Yes, sir. बट यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। द एडजॉइनिंग फिगर शोज द डिस्क ऑफ द मास m, रेडियस आर लाइंग ऑन द xy plane with a center on x axis at the distance a from the origin. The moment of inertia of the disk about the x axis, बट मुझे फाइंड करना है ये अबाउट द x axis फाइंड करना है। तो अबाउट द x axis तो भैया वही है, डायमेट्रिकल एक्सिस ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो y एक्सिस अगर होता तो कुछ अच्छा होता। x एक्सिस का तो भैया वो तो डायमेट्रिकल एक्सिस ही हुआ x एक्सिस, तो उसका तो आंसर क्या आएगा भैया? 1/4 mr square. 1/4 mr स्क्वायर ही आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। तो चाहे आई वाई चाहे आई एक्स अगर होता है तो वो तो 1/4 mr स्क्वायर ही आएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे y एक्सिस होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता। तो फिर क्या होता, तो फिर हमको क्या करना पड़ता? इसके रिस्पेक्ट में अगर फाइंड करना होता तो क्या करना पड़ता हमको? तो हमको आई सी प्लस एम डी स्क्वायर करना पड़ता पैरेलल एक्सिस। अब उसके खुद के सेंटर में से जो एक्सिस पास हो रही है उसके लिए तो हमको पता है कि क्या है,
1/4 mr² प्लस md²। डी क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली द आंसर A. m इंटू r² / 4 प्लस a²। तो अगर ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछे तो ये आंसर आएगा, एंड x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर पूछा है तो वो तो रहेगा आपका mr²/4। अब देखते हैं वाकई में गलत है। देख लेते हैं आंसर क्या लिखा है। देखो तो आप देख के बताओ तो आंसर क्या लिखा हुआ है। लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 59 का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में 59 का दिया हुआ है आंसर ए दिया हुआ है। तो 59 में ए दिया हुआ है मतलब क्या हुआ? ए दिया हुआ है, क्या बात है, 59 में ए दिया हुआ है। बी है सर। लेट मी चेक वंस अगेन। 59 59 59 ओके 59 हियर इट इज। हाँ बी दिया हुआ है ना भैया, तो बराबर है। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन बी दिया हुआ है तो ठीक है भैया। क्वेश्चन भी ठीक है, सॉल्यूशन भी ठीक है। क्वेश्चन भी ठीक है, सॉल्यूशन भी ठीक ही है। बट कौन सा क्वेश्चन पूछते तो अच्छा रहता? कौन सा क्वेश्चन पूछते तो अच्छा रहता? वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछते ना तो अच्छा रहता। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन में x एक्सिस का पूछा है, सॉल्यूशन में भी वही दिया हुआ है। बट अगर y एक्सिस का अगर पूछते ना तो अच्छा क्वेश्चन होता। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अंडरस्टूड? आया बात समझ में? यस सर। ओके Yes, sir. चलो और बताओ। अप टू 60। अप टू 60 लास्ट कॉल। चलो अब 73 से लेके 82 तक। 73 to 82 anybody wants to ask? (73 to 82) पूछना है कुछ? सर 79 हमने किया हुआ है। 79 ओके लेट मी चेक। हाँ ऐसा एक क्वेश्चन हमारे नोट्स में था, अगर आपको याद हो तो। नोट्स में था एक क्वेश्चन ऐसा। करना है तो कर देते हैं फिर से। यस सर, एमसीक्यू में था। कर लेते तो भी एक बार। A thin circular ring of a mass capital M and radius capital R is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects each of mass small m are attached gently. Gently का मतलब बहुत ही slowly, so that the system is not getting any external torque. तो हमने बहुत ही जेंटली दो मास पार्टिकल को रिंग के ऊपर प्लेस किया है। तो ये जेंटली वर्ड ऐसा हमको दिखा रहा है कि कोई हम एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं प्रोवाइड किया है तो बोलो सिस्टम का क्या कांस्टेंट रहेगा? एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 इज इक्वल्स टू L2। तो L1 इज इक्वल्स टू L2 का मतलब ये हुआ I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। अब इनिशियली तो जो था ना वो रिंग एक ही था, जस्ट रिंग वाज रिवॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, इट्स ओन एक्सिस।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली क्या होगा, तो बोले ओनली रिंग का, तो रिंग का कितना होता है, तो बोले mr² होता है, एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो था वो ओमेगा था, तो इनटू ओमेगा. बट आफ्टर प्लेसिंग टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्मॉल m मास, व्हाट शुड बी द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम. तो भाई रिंग तो है ही, तो रिंग का तो रहेगा ही रहेगा, बट वो मास पार्टिकल्स है ना, उसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस रिंग का रेडियस जितना ही होगा, तो mr² दूसरी बार mr², तो मास पार्टिकल का रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2 इंटू mr². इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये r² जो है ना वो कैंसल हो जाएगा, बिकॉज इसमें इस राइट साइड के टर्म्स में से मैं r² को कॉमन ले सकता हूं, एंड दैट इज गेटिंग कैंसल्ड. सो ओमेगा डैश अगर हम सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं, तो कैपिटल M अपॉन ओमेगा डैश को अगर सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाता है, तो कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस अ 2 स्मॉल m इनटू ओमेगा. सो दैट इज व्हाट इज आवर आंसर. आया बात समझ में फ्रेंड्स? यस सर. चलो और बताओ, 89 से लेके 103 तक किसी को कुछ पूछना है? 89. अच्छा 89, ओके. A ball rolls without slipping. A ball rolls without slipping. The radius of the gyration about the axis through its center of mass is k. Then the fraction of the total energy associated with its rotational kinetic energy is fraction of the total energy associated with the rotational energy. Okay, that's okay. So friends, ये टॉपिक के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं. द टॉपिक नेम इज अ रोलिंग विदाउट स्लीपिंग और स्लाइडिंग. तो इसके अंदर नंबर 1, its total energy is a k rotational plus k translational, and that is equals to half mv square plus half I omega square. That is the total energy, right? अगर वो h हाइट से उसने स्टार्ट किया है, so at the bottom it's completely its potential energy gets converted into the, if it had started from the h height, then at the bottom its complete potential energy gets converted into the rotational plus translational kinetic energy. So that is the first thing. Second thing, when it come to the bottom, when the object comes to the bottom, its velocity square can be given by 2gh upon, if you remember, then the formula was 1 plus k square by r square. So velocity का जो formula है ना, that is root 2gh 1 plus k square by r square. That was the formula, right? Okay. Apart from that, we also had learnt about the formula of its acceleration. So throughout the motion, its acceleration was given by g sine theta upon 1 plus k square by r square. That was the acceleration. So that is the formula of the acceleration. Number 4, frictional force. तो शायद आपको याद होगा कि उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो ये है
Okay, that is equals to माजी sin theta into उसका था आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस मतलब के स्क्वायर माइनस, अच्छा तो के स्क्वायर आएगा ऊपर, अच्छा तो ये रहा, दैट इज द फॉर्मूला के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ये फॉर्मूला था फ्रिक्शनल फोर्स। अगर इसको मैं नॉर्मल माजी कोस थीटा से डिवाइड कर लूंगा तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन मिल जाएगा फ्रिक्शन, और ये फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला था वो था माजी साइन थीटा अपॉन माजी कोस थीटा, तो इट विल बी अ tan थीटा इनटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। So if you remember, that was also written as a mu is equals to tan theta upon 1 plus r square by k square। k square से मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। And more precisely, the condition for rolling without sliding was this friction must be either equals to this or it should be greater than that। अगर फ्रिक्शन उससे कम हो जाएगा ना तो सरफेस स्मूथ हो जाएगा, एंड अगर सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगेगा, उसको स्लाइड नहीं होने देना है, उसको रोल कराना है, तो फ्रिक्शन उससे ज्यादा होना चाहिए। सो दीज आर द फॉर्मूलाज वी हैड ऑब्टेन एट द टाइम ऑफ द रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। ये सारे फॉर्मूला था, राइट। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई टोटल एनर्जी का कौन सा फ्रैक्शन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, वो बोले हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। सो ये आपका रोटेशनल, देखो रोटेशनल ही है ना कि ट्रांसलेशन पूछा है, एसोसिएट रोटेशनल है, चलो गुड। अब फ्रेंड्स आई के बदले आप क्या लिख सकते हो, तो बोले एम के स्क्वायर लिख सकते हैं आई के बदले, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर के है, एंड ओमेगा स्क्वायर के बदले वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ द के रोटेशनल। अब के टोटल के रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो बोले हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अब ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अभी मैंने उसको कन्वर्ट किया एम वी स्क्वायर के फॉर्म में, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसी में कन्वर्ट किया। तो एक काम करते हैं, ये दोनों में से हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जो टोटल इफेक्टिव आपका काइनेटिक एनर्जी है ना वो हाफ एम वी स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 के रोटेशनल अपॉन के टोटल इफेक्टिव अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, नीचे बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा आपका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बचेगा, बाकी सब कुछ कैंसिल। तो नाउ आई कैन से द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज अ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फ्रैक्शंस ऑफ अ के टोटल के इफेक्टिव। तो वही तो ये फाइंड करना था कि वो कितने फ्रैक्शन जितना होता है, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर शुड बी द आंसर, a square upon r square plus k square should be the answer. So option B should be the answer. 89th में ऑप्शन बी होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं 89th क्वेश्चन में ऑप्शन बी है या नहीं है। ये रहा आपका आंसर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो और बताओ। नाइन्टी थ्री। 93 ओके। Okay, so now I think it will be very simple for you. अब ये आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि भाई एक सॉलिड स्फीयर है, उसका मास आपको दिया हुआ है, उसका रेडियस भी दिया हुआ है, एंड इट इज रोल्स विदाउट स्लिपिंग
विद वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है। अभी मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया टोटल काइनेटिक एनर्जी का, वो अभी आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर 2-3 स्टेप है, और कुछ नहीं है, 2-3 ही तो स्टेप है, और कुछ नहीं है, तो यू कैन रिमेम्बर इजीली। स्टेप करना है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। बट सबसे पहले क्या करोगे, एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर नाम सुन के आपके दिल में आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी? 2/5 mr square. 2/5 mr 2/5 mr स्क्वायर। तो इसको m square. निकाल दोगे ना तो आपको के स्क्वायर मिल जाएगा, तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा आपका, m हटाओ तो के स्क्वायर मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा आपका 2/5 r स्क्वायर। ओके, इज इट ओके? Yes, sir. या फिर एक काम करते हैं, वो फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको, क्यों इतनी चिंता करते हो आप, सीधा सोचो ना। चलो डायरेक्ट स्टार्टिंग से करते हैं कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो बोले हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई के बदले 2/5 mr स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर के बदले v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा आपका हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/5 mv स्क्वायर। सो कैन आई से इट इज अ 1/7 mv स्क्वायर? क्या मैं कह सकता हूँ 1/7? कैन आई? Yes, sir. क्या यस यार, गंदी बात, बहुत गंदी बात, गंदी 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 बात। 7/10 mv square. 500 ग्राम 0.5 kg 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा 7/10 इंटू 0.5, 0.5 का मतलब हाफ, 0.5 का मतलब आपका हो जाएगा हाफ, एंड 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 0.02, 0.04 डिवाइड बाई 2 मतलब 0.02, 0.02 इंटू 4 मतलब आपका 14.14 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.014, तो 0.014 शुड बी द आंसर। आया बात समझ में? Yes, sir. इज इट ओके? चलो अब बताओ, बोलो अप टू 113। देखो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आपको ये सब करके लाना है, तो भाई हुकर को यू मस्ट सॉल्व। मैंने ऐसा बोला कि भाई आपको बेसिक लेवल के सॉल्व करके लाना है, तो आपको लाना है, दैट्स इट, वो करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। करना ही करना है, वो कंफर्म्ड है। चलो फ्रॉम 120 टू 141, from 120 to 141, 120 to 141, wants to ask anything, anybody? Last call. Sir, 106 में है. 106, okay. Okay. देखो क्या लिखा है, सर्कुलर डिस्क has a mass of 1 kg, radius 40 centimeter. It is rotating about the axis passing through the center and perpendicular its plane. Then the speed of is a 10 revolution per second. Then what is the work done in stop this? सीधी सी बात है भैया, इसमें क्या है? What is the work required to stop it?
तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसको स्टॉप करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ वर्क एनर्जी, तो उसको स्टॉप करना है, मतलब उसको स्टॉप करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसके काइनेटिक एनर्जी का चेंज इतना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे फाइनली स्टॉप करने की बात है। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही आपका वर्क होगा। एंड उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो बोले हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना है, तो बोले डिस्क है, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है भैया, हाफ एम आर स्क्वायर। ओमेगा दिया हुआ है आपका, बोले 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड, लास्ट में लिखेंगे। चलो आप सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2 मतलब 1/4। मास दिया हुआ है आपको 1 kg, रेडियस दिया हुआ है आपको 0.440 सेंटीमीटर पर 0.4 का स्क्वायर ओमेगा 10 का स्क्वायर 100, तो 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। सर बोलो, ओमेगा को क्या बोल रहे हो? ये सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे हाँ, ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में कर। एग्जैक्टली। तो ये 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, वेरी गुड। तो 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड मतलब 10 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर और बचेगा। ओके ओके, चलो अब 0.4 का स्क्वायर 0.16 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 0.16 मतलब 16 रहेगा। 16 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इंटू पाई स्क्वायर इज योर आंसर। पाई स्क्वायर जो होता है वो ऑलमोस्ट 10 होता है, पाई का स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 होता है, तो 16 अप्रोक्सीमेट, इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो 16 इंटू 10 मतलब 160 जितना आएगा। तो अप्रोक्सीमेट 160 के आसपास कोई ऑप्शन है? So that is your answer. Is that clear? ओके सर। Is it understood? चलो और बताओ, अप टू 113। बोलो। सर 112 134। 112, कोई 112 बोला? यस सर। ओके, एंड दूसरा कौन बोला? 134। ओके, 134 बाद में कराते हैं, पहले 112 कर लेते हैं। चलो, a flywheel has a moment of inertia 4 kg meter square and its a kinetic energy 200 joule. Calculate the number of revolution it makes before coming to the rest if the constant couple force couple मतलब torque दिया हुआ है। Okay, fine, good. So friends, according to the work energy theorem, W is equals to डेल्टा के। अब W जो होता है ना वो टाउ थीटा होता है। W is equals to tau theta and delta K is equals to K final, K initial minus K final। अब K final तो 0 है because it is going to stop, तो tau into theta is equals to K initial and K initial मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो उसका काइनेटिक एनर्जी ही दिया हुआ है हमको, सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस, तो वो करने की जरूरत ही नहीं है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। चलो, टॉर्क दिया हुआ है 5, थीटा का वैल्यू मुझे फाइंड करना है बिकॉज आई वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है 200, तो आपका थीटा हो जाएगा 40, बट 40 इन रेडियन।
अब मुझे क्या करना है, मुझे रिवॉल्यूशन में लाना है। तो 1 रिवॉल्यूशन जो होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। तो अगर रेडियन को रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो 1/2 पाई रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको अगर रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रिवॉल्यूशन। सो थीटा जो हो जाएगा वो आपका 20/3.14 रिवॉल्यूशन। तो 20 डिवाइड बाई 3 करोगे ना आप तो ऑलमोस्ट 6 समथिंग आएगा, 6 3 18 समथिंग आता है। यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग रिवॉल्यूशन। सो 6 पॉइंट पे एक ही है 6.4, तो दैट शुड बी द आंसर। यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, उसका कोई मायने नहीं रखता। इज दैट क्लियर? हाँ सर, यस सर। तो 1 1 2 एक बार चेक कर लेते हैं कि हम जो लाए वो बराबर सी ऑप्शन हम लेके आए हैं, तो क्या वो वाकई में सी ऑप्शन है कि नहीं है। 1 1 2 1 1 2। So 1 1 2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो और कौन सा था? 134. 134। ओके, देखो सॉलिड सिलेंडर, तो पहले ही देख के दिल में से आवाज आएगी सॉलिड सिलेंडर है तो क्या आवाज आएगी? 1/2 mr square. वेरी गुड, 1/2 mr स्क्वायर। वेरी गुड। सॉलिड सिलेंडर का मतलब डिस्क हुआ, डिस्क का मतलब हाफ mr स्क्वायर। अब लिखा क्या है वो देख लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर 30 सेंटीमीटर इन द डायमीटर at the top of an inclined plane of 2 meter height, released, and it's rolled down in the inclined way without the sliding, inclined without the loss of energy due to the friction. It's a linear speed at the bottom. तो ये तो सीधा फॉर्मूला ही अप्लाई करना है ना आपको, तो फॉर्मूला ही तो है, याद करो याद करो याद करो। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन उसका r/√2 होगा। m हटाओ, रूट निकालो, तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ना वो r/√2, तो k स्क्वायर का मतलब r²/2। 1 प्लस k स्क्वायर का हो जाएगा r²/2, तो r²/2 अपॉन r² से कैंसिल, 1/2 रहेगा, 1 + 1/2 3/2, नीचे 3/2 ऊपर जाएगा तो 4/3 बचेगा। तो 4/3 g का वैल्यू 10 मान लेते हैं, एंड h दिया हुआ है आपका 2 मीटर हाइट। ओके, तो ये आपका आ जाएगा कुछ 80/3 समथिंग, 80/3। नहीं आ रहा है 80/3 मतलब क्या होगा रूट में? 80 डिवाइड बाई 3 करो तो 5.16. 5.163. क्या रहा है? 5.16. ये आई थिंक आपका आएगा कुछ 80, 25 3 75 या, तो ये 25 पॉइंट समथिंग आएगा ना आपका, और उसका रूट निकालोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आपका रहेगा मीटर पर सेकेंड। तो है कुछ 5.29, ये रहा ना आपका, ये रहता है ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। इज दैट क्लियर? इज इट अंडरस्टूड? So this should be the answer, option A. Let's check out. Option A होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 134 में। 5.16 आता है तो कैसे होगा? ये रहा ऑप्शन ए। क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? रूट निकालते तो 5.16 आता है। 80 डिवाइड बाई 3 किया आपने? यस सर। आ रहा है
26.6 बार। एंड उसका रूट निकालो तो क्या आ रहा है? 5.1639। चलेगा ना, वो अप्रोक्सीमेट तो वही हुआ ना। ओके। ओके, चलो और बताओ। अप टू क्वेश्चन नंबर 141। Wants to ask any question up to 141? Wants to ask? Last call. Okay, so from the next lecture I'm going to discuss the advanced level question, but मैं तो भी आपको बोल देता हूँ कि आपको क्या करना है. You just tried to solve the advanced level up to 100 में जितने भी advanced level के question है ना उसको try करो just. up to 100 के अंदर जितने भी advanced level के question है उसको solve करने का try करो. Okay? और otherwise I am going to solve you. Okay? तो आज का सेशन फ्रेंड्स हम यहाँ पे एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. आप 1 to 100 के अंदर जितने भी एडवांस है उसको ट्राई करो. नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा. ओके ओके सर. एंड आई एम गोइंग टू सेंड यू सम permission letter, and you need to sign your you signed this letter with your parents, and then submit. You need to submit it for the office. Probably we'll start an offline session from the Wednesday, Thursday or Friday. So I will inform you. हाँ सर, वो आज के दिन में भेज जो देना ना. दूसरे दो सर ने भेजा है ना, तो साथ साथ में हो जाए आपका भी फॉर्म. हाँ जस्ट अभी भेज देता हूँ 10-15 मिनट के अंदर. ओके, तो आज का यहाँ पे सेशन में एंड कर रहा हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स. बाय सर. बाय सर.